Assalamualaikum students. Again we are starting our chapter in chemistry. A new chapter is called metallurgy. Since we are continuing with our school section, we have completed periodic table, chemical, reaction and equation. So I want to continue with the chemistry part. Those students who have not gone through the periodic table and equation part, I personally say to go through that chapter first, because these two chapters are very related to this. Equations are there and all these things, which are the metal, why they are non-metal. They are very related to this chapter. So today I will make the video very short as an introductory part only. So it's an opportunity for you to go through that chapter, because my next video, inshallah, I will try to complete maximum part of the chapter. So complete your periodic table and chemical equation. Okay, let's begin with this chapter. What are the content in this chapter? We are going to learn physical property of the metal, physical property of the non-metal, chemical property of metals as well as non-metal, reactivity series of metal, ionic compound and various concepts of metallurgy. So today we will learn only about the physical property. It's a short lecture, will be there. Introduction part of the metal and non-metal. To go through the other chapters of the chemistry, which are the very basic, to understand this chapter in a proper way. See, in our daily life we see number of substances. These substances can be categorized as element or compound. What is the element? Element is a pure thing of a single type of atom. Single type of atom. This is the aluminium. So it represents aluminium element, because all the atom in it is of one type of atom, which represents aluminium element. So element is a pure type of atom. Compound mixture, 2 or 3, this is water, hydrogen is element, oxygen is element, and together they form compound called as water. So we see number of things in our daily lives. They are made up of compound and element. We talk about the element. There are 3 types. What are they? They are metal, non-metal and metallite. This we have covered in periodic table. That's why I'm saying now to complete the chapter periodic table. Why something is called metal? Why it is called non-metal? Why it is metallite? Complete your chapter periodic table in a proper way. And साथ साथ chemical equation वाला chapter भी. तो you all know, I think कि जिसने कवर किया वो चैप्टर अच्छे से, उसको मालूम होगा मेटल, नॉन-मेटल, मेटलॉइड क्या होता है. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हर के बारे में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल और उसके बाद वो कैसे रिएक्शन करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो मेटल के बारे में अभी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मेटल का. व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जब हम लोग बात करते हैं तो द थिंग विच वी ऑब्जर्व, टच, फील कर सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं, देख के बता सकते हैं, टच करके बता सकते हैं, स्मेल करके बता सकते हैं, ये सब के बता सकते हैं, उसको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं. तो मेटल दिखने में कैसा लगता है, टच करने में कैसा लगता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं. तो मेटल क्या है? जनरली मेटल क्या होता है? सॉलिड होता है. जनरली ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, बट देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस. What are they? They are mercury and gallium, which exist as a liquid in the room temperature. Room temperature बोले तो नॉर्मल अभी का जो टेम्परेचर है हमारे घर में, जो हम लोग रहते, सोते, उठते, बैठते, उसमें क्या होता है? मर्क्यूरी और गैलियम लिक्विड में रहते हैं. थर्मामीटर में आप देखा होगा,
थर्मामीटर रीडिंग ऊपर नीचे हो रहा है, तो कौन कर रहा है वो रीडिंग? वो मर्क्यूरी होता है। थोड़ा इंक्रीज की टेम्परेचर वो क्या होने लगा, एक्सपैंड होने लगा, तो इसलिए ऊपर चला जाता है। थोड़ा टेम्परेचर बाहर निकाले तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो नीचे आ जाता है। इसलिए मर्क्यूरी क्या करता है, चेक करता है हमारा टेम्परेचर एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट के वजह से। तो मेटल जनरली हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, आयरन ये सब बहुत टफ होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। व्हाट आर दे? मर्क्यूरी एंड लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। सी इट इज हार्ड इन, इफ वी टच इट इज सॉलिड स्टेट पे होते हैं। तो मर्क्यूरी और दिस इज गैलियम, ये क्या है? लिक्विड है। मर्क्यूरी इज वेरी पॉइजनस, बहुत जहरीला होता है, तो हमें उसे अपने हाथ से टच नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी है मेटल का क्या है? लस्टर, चमकीला होता है, शाइनिंग होता है मेटल में। आप देखो सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक का कोटिंग किया हुआ इसके ऊपर शायद, तो ये सब क्या है? लाइटनिंग आता है उसमें से, शाइनिंग होता है, इसलिए उसको लस्टर बोलते हैं। तो मेटल का प्रॉपर्टी है ये। हाँ, वो लस्टर में भी रिएक्शन के बाद क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। जैसे आयरन में सब में क्या होता है? ये जिंक का कोटिंग क्या हुआ आयरन के ऊपर, और ये क्या हो रहा है? रिएक्शन कर रहा है एयर के साथ, गैसेज है, डिफरेंट गैसेज एयर में, वाटर के साथ, केमिकल के साथ, तो उसका लस्टर खत्म हो सकता है कोरोशन लगने के बाद। ऐसा हो सकता है कि वो लस्टर, उसका शाइनिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। लेकिन जनरली मेटल क्या होता है? वो रिएक्शन नहीं किया, वो प्योर फॉर्म में है, तो वो शाइनिंग होगा। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक मेटल का क्या है कि वो डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी होता है। डक्टिलिटी मतलब किसी भी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ, देखो कॉपर को किस तरह से रोटेट कर रहे हो, वो ब्रेक नहीं हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, कॉइलिंग बना दी है कॉपर को। कॉपर का वायर होता है, इलेक्ट्रिक वायर निकालो, उसमें देखो ये वायर में क्या होता है? कॉपर रहते हैं, पतले पतले कॉपर रहते हैं वायर, वो ब्रेक नहीं होता है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को। अब गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, उसको बहुत 1 ग्राम गोल्ड को 1 किलोमीटर तक खींच सकते हैं पतले फॉर्म में। तो इतना ज्यादा गोल्ड क्या होता है? डक्टाइल होता है। मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि आप लोहा, जो भी आपके घर में डिशेज बनते हैं, वो पतले पतले डिशेज होते हैं, प्लेट फॉर्म में बन सकते हैं। आप मेटल को हैमर करो, हैमर करो, हैमर करो, ब्रेक नहीं होगा, वो पतला होते जाएगा, पतला होते जाएगा, प्लेट के फॉर्म में बन जाएगा। तो मैलिएबिलिटी होता है, वो हैमर को विथस्टैंड करता है और थिन होगा, लेकिन ब्रेक नहीं होता है जल्दी। आप कोयले को हैमर करो, वो पाउडर बन जाएगा। तो कोयला मैलिएबल नहीं है, लेकिन मेटल क्या होता है? मैलिएबल है। नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होता, ना ही डक्टाइल होता है, लेकिन मेटल डक्टाइल होता है और मैलिएबल होता है। मेटल का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल, सारे मेटल कंडक्ट करते हैं। नॉन मेटल में सिर्फ ग्राफाइट जो है वो हीट कंडक्ट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और डायमंड नहीं करता है। तो ये रीजन क्या है हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का? देखते थोड़ा यहाँ पे कि एक मेटल, सपोज दिस इज मेटल रॉड, मेटल रॉड है। वो मेटल रॉड के अंदर आप जब पढ़े थे, सपोज एग्जांपल लेते हैं हम लोग, किसी का सोडियम का ले लिए, सोडियम ले लें, इसके ऊपर फर्स्ट ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ये आपको मालूम होगा मेटल क्यों बन रहा है सोडियम? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, तो उसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसको मेटल बोलते हैं। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये क्या होता है? इसमें फोर्स कम होता है, ये बाहर निकलने लगता है, ये बाहर निकल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो मेटल का प्रॉपर्टी है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव करता है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये मेटल है एल्युमिनियम, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से उधर रोटेट कर रहे हैं, रैंडमली एक दूसरे से टकरा रहे, तो ये ऐसे घूमते रहते हैं ऐसे मेटल के अंदर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है क्या के लिए? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे हैं। अब इसको क्या किया मैंने, क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया।
पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेल लगा दिया हम लोग, एक सेल लगा दिए, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब पॉजिटिव के तरफ से ये नॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर घूम जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर याद होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया मैंने, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे और करंट क्या होगा, फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्रिएट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होता है। जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होता है तो उसको हम लोग करंट बोलते हैं। और जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किए थे तो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा था, लेकिन रैंडमली मूव हो रहा है, इधर एक दूसरे से टकरा रहे, उधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो इसलिए करंट नहीं फ्लो हो रहा था। जब एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हमें पता चलता है कि करंट है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अवेलेबल है, ये सिर्फ मेटल में अवेलेबल होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्शनल केसेस है ग्राफाइट का, एक्सेप्शनल केसेस है जो कि नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो सारे नॉन मेटल मेटल क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पॉसेस करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसी तरह हीट भी आप सारे ये जो भी हमारा यूटेंसिल है वो क्या इसका बना होता है, मेटल का, क्योंकि मेटल क्या करता है, हीट पास करता है, यही रीजन है। मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल की जो एटम एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड से क्या करते हैं, होल्ड करके रखे, है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से होल्ड करके रखे, वंडर वाल फोर्स बोलते हैं। ये जो डिटेल में हम लोग 11th स्टैंडर्ड का है, ये क्यों होल्ड करके रखे। तो अभी जो हम लोग जस्ट जाने कि मेटल क्या है, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट है। इसमें एग्जांपल है टंगस्टन का हाईएस्ट क्या है मेल्टिंग पॉइंट है 3422 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए जो बल्ब होता है, बल्ब पे जो आप देखो वायर होता है, जिगजैग वायर होता है, सब थिन वायर होता है, वो क्या होता है, वो टंगस्टन का होता है। इसलिए बनाते हैं ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, वो मेल्ट ना करे जल्दी और ग्लो करे। तो मेटल इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल शो कर रहा है। पीरियोडिक टेबल में ये जितने ग्रे कलर का शो कर रहा है वो सारे मेटल है, ये ग्रीनिश मेटलाइड है, और ये लाइट येलो जो कलर दिखा रहे हैं नॉन मेटल है। हाइड्रोजन का फिक्स नहीं है, नॉन मेटल है, मेटल है, कुछ प्रॉपर्टी इसके मेटल के, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल के। यहाँ पे ऐसा नॉन मेटल लिखा है, कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का मेटल भी है। तो इतने सारे मेटल होते हैं अवेलेबल होते हैं नेचर में। नॉन मेटल कम है लेकिन बहुत ज्यादा उसका डिमांड भी होता है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मेटल बहुत सारे हैं, मेटलाइट भी कम है। आप देखो पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर आपको मेटल ही दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो एलिमेंट है यहाँ पे, ये सब क्या है, थोड़ा सा वो उतना ज्यादा वो नहीं है, मतलब उतना ज्यादा हार्ड नहीं है ना, सॉफ्ट मेटल भी बोलते हैं उसको। सॉलिड है लेकिन थोड़ा सॉफ्ट है। सोडियम, लिथियम, इमेज देखो सॉलिड दिख रहा है, सोडियम सॉलिड है, पोटेशियम भी सॉलिड है, लेकिन उतना ज्यादा हार्ड नहीं, जैसे आयरन ये सब है उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है वो। तो इसको इतना ज्यादा मेल्ट करने का जरूरत नहीं है, वो छुरी से भी हम लोग काट सकते हैं सोडियम को। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हीट कंडक्ट किया, यहाँ पे हीट की तो ये रेड कलर हो गया। अब ये हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है दूसरे पार्ट में, मेटल है इसलिए ट्रांसफर हो रहा है, नॉन मेटल में ट्रांसफर नहीं होता। तो ये फास्ट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है हीट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो मेटल क्या कर रहा है, ट्रांसफर करता है हीट। अब बॉयल भी नहीं हो रहा है इतना ज्यादा हीट होने के बाद भी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट ये जो होता है सोडियम पोटेशियम का, ये सबका कम होता है, ये तो ऑलरेडी मेल्ट होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। सोडियम पोटेशियम का भी कम होता है, दो सॉलिड है लेकिन पोटेंशियल वो मेल्टिंग पॉइंट कम है। और सोडियम को मैंने बताया कि हम लोग नाइफ से इसको कट कर सकते हैं। तो ये सब एक्सेप्शनल केसेस है मेटल के लिए। अभी दूसरा प्रॉपर्टी है सोनारिटी, मतलब जब आप देखो घंटी स्कूल में बजता है तो वो जो घंटा रहता है वो क्या चीज करता है, दोनों मेटल का होता है, कॉपर का, ब्रास का, जो भी चीज का होता है
तो मेटल यूज कर रहे हैं हम लोग। मेटल इसलिए क्या होता है, सोनार आवाज होता है, आवाज आता है उसमें। आप किसी चीज को पढ़ सकते हैं, एक मेटल दूसरे मेटल से टकराता है तो आवाज आती है, यूटेंसिल से टकराता है एल्यूमिनियम पर तो आवाज आती है। तो ये आवाज प्रोड्यूस करना ये मेटल का कैरेक्टरिस्टिक है, इसको सोनारस बोलते हैं। ब्रास बेल और स्पून बेल, यहाँ पे ये है, मैं आवाज करूंगा, हिट करूंगा मेटल से तो आवाज जाएगा और वो वाइब्रेट भी होंगे। तो ये मेटल का प्रॉपर्टी है, जो बनाते हैं तो वाइब्रेट होता है, इसमें टकराते हैं तो घंटे में, और आवाज होता है टन, ऐसा आवाज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल ज्यादातर क्या होता है कि गैस होते हैं, है ना, कुछ सॉलिड होते हैं, ज्यादातर गैस होते हैं, और एक्सटर्नल गैसेस में जैसे ब्रोमाइन है वो लिक्विड है। अब देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये सब गैस है, गैस है, और कार्बन सॉलिड होता है, ब्रोमाइन क्या है, लिक्विड है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर गैस इन स्टेट। ब्रोमाइन आर लिक्विड स्टेट। नॉन मेटल लस्टर नहीं होता है, चमकीला नहीं होता है, एक्सेप्शनल केसेस है आयोडीन। आयोडीन में थोड़ा शाइनिंग होते हैं, लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है, शाइनिंग नहीं होती है, डल कलर का होता है, कलरफुल होता है नॉन मेटल ज्यादातर, लेकिन शाइनिंग नहीं होता है। देखो शाइनिंग आ रहा है, ये आयोडीन है। मेटल हार्ड, नॉन मेटल हार्ड नहीं होता है, एक्सेप्शनल केसेस में क्या है, डायमंड है कि जो कि कार्बन का फॉर्म है, तो वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर में, लेकिन नॉन मेटल का सॉफ्ट होता है और ये गैस फॉर्म में होता है। डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नेचुरली फॉर्म। डायमंड, ये कार्बन के अलग अलग फॉर्म है, एटॉम, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कार्बन चैप्टर में। नॉन मेटल है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हीट होता है, क्योंकि इसके पास ये नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नॉन मेटल हीट भी कंडक्ट नहीं करते, सॉफ्ट है इसीलिए हीट भी कंडक्ट नहीं करते। ग्राफाइट है, ग्राफाइट जो आपके पेंसिल में लेड होता है वो कंडक्ट करता है, एक्सेप्शनल केसेस है वो लेड कंडक्ट करता है। ग्राफाइट जो लेड है आपके पेंसिल में वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन का एक फॉर्म है एलेक्ट्रॉन, मैं बाद में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी जानने पर जस्ट एक ये देख लेते हैं। ये देखो मेटल में क्या हो रहा है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, डुप्लीकेट ऑर्बिट को स्टेबल करना चाहता है। तो यहाँ पे सोडियम में क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आउटर ऑर्बिट में, तो उसको लास्ट ऑर्बिट में क्या चाहिए, उसको स्टेबल चाहिए। तो क्या हो सकता है, लास्ट ऑर्बिट में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अब यहाँ पे 7 है, तो उसके पास दो ऑप्शन है स्टेबिलिटी के लिए कि चाहे तो एक को हटा दे या तो 7 ले ले। 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो लास्ट ऑर्बिट फिल हो जाएगा। तो 7 लेना इजी है या एक हटाना इजी है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए। उसको ये नहीं चाहिए मेरे पास कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी इज मोर में फोकस। तो एक हटाना इजी है, तो क्या करता है, एक दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। यहाँ पे क्लोरीन में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाए उसको। यहाँ पे देखो 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं 7 है। अब इसको एक लेना इजी है कि 7 हटाना इजी है, तो 7 हटाने के लिए मुश्किल पड़ेगा, तो अच्छा ये क्या करता है, एक ले लेता है। सोडियम से एक ले लिया, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम पॉजिटिव हो गया, एटम बन गया, और ये ले लिया तो ये आयन बन गया। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम जब इलेक्ट्रॉन दे देते उसको एटम नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो आयन भी दो कैटेगरी का है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर वो इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव होगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेता है नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे तो वो नेगेटिव कहलाएगा, एनॉन कहलाएगा। तो यहाँ पे दो मिलके इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये सोडियम और क्लोराइड का हो गया, एक कंपाउंड बन गया, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे घर का नमक होता है, ये व्हाइट नमक, ये यही होता है, सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो आप देखोगे कि ये केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, केमिकल रिएक्शन यही होता है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सोडियम क्लोराइड और ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसके बाद एक कंपाउंड बन गया, एक रिएक्शन हो गया। ये क्या रिएक्शन हुआ है, सोडियम क्लोराइड बन गया। इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया।
तो सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड बन गया। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये। तो हमेशा हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लूज कर रहे हैं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाते हैं। इसलिए मेटल का कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल, मैंने कहा कि मैं फिजिकल प्रॉपर्टी आज पढ़ाऊंगा, तो ये जो स्लाइड में है रिएक्शन दिया हुआ है तो थोड़ा देख लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन होता है। मैं रिएक्टिविटी सीरीज बना रहा हूं यहाँ पे, आपको याद कर रखने पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। मैंने भी पहले फोटो या सेंड किया था आपको। अब यू हैव टू बाय हार्ट दिस रिएक्टिविटी सीरीज। दिस इज पोटेशियम, that is K, sodium Na, then calcium, then magnesium, then aluminium, then zinc, then iron, then आयरन है, फिर आयरन के नीचे हाइड्रोजन आपके कॉपर, फिर मर्क्यूरी, देन सिल्वर, देन गोल्ड। ये जो सीरीज बता रहा है ये क्या बता रहा है कि ये जो है ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रहेंगे, और नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। तो इट हैव टू बाय हार्ट। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है ये। यहाँ पे आयरन के बाद यहाँ पे टीन और लेड भी है, टीन और लेड भी है। यहाँ पे उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, ये ज्यादा, ये जो एलिमेंट है इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा विद देयर अरेंजिंग पावर। कैसे अरेंज किया हुआ है तो हम लोग हर एक को पढ़ने पड़ेगा, इसका रिएक्शन कैसे होता है, इसका रिएक्शन कैसे होता है। ये सारे जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये हम मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे। सबके कैरेक्टरिस्टिक, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन है, एसिड के साथ कैसा रिएक्शन होता है, दूसरे मेटल के साथ कैसा रिएक्शन होता है, तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ने का रहेगा। तो पोटेशियम क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम सोडियम होता है, उससे कम कैल्शियम होता है, उससे कम मैग्नीशियम होता है, उससे कम एल्युमिनियम होता है। ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे तो इंक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहे तो डिक्रीज हो रहा है। क्या, रिएक्टिविटी सीरीज, कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कितना फास्ट रिएक्शन करता है। जैसे एक एग्जांपल समझने के लिए देखो कि हमने क्या किया, बर्न कर रहे यहाँ पे कुछ मेटल को, क्या किए, ऑक्सीजन हवा में है और उसको हीट किए तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड। लेकिन कुछ एलिमेंट है, मेटल है, वो इतना फास्ट है इसको हीट देने का जरूरत ही नहीं है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया रहेगा चार्ट में, sodium potassium are very reactive. Sodium metal combined with oxygen in air even at room temperature and form sodium oxide. Reaction देखते हैं हम लोग। ये आजान हो रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इंशाल्लाह डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज कंप्लीट करो और पीरियोडिक टेबल और केमिकल इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट करें। अस्सलाम वालेकुम।